Hello everyone, this is today's the Hindu newspaper analysis session for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is related to Startup India Mission 2016. Second issue is Jallikattu, a culture or animal cruelty. Third issue is why Article 6 of Paris Agreement is a powerful tool for India. And fourth issue is related to status of solar energy in India and world. So let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss about Startup India Mission. Why in news? Nearly 44,000 startups registered with government in 2025, the highest annual addition since Startup India was launched, PM said. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है कि 2025 में गवर्नमेंट ने 45,000 स्टार्टअप रजिस्टर किए हैं, जो कि स्टार्टअप इंडिया मिशन लॉन्च होने के बाद एक हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है ईयरली. Startup Indian Mission, launched on January 16, 2016, the flagship initiative seeks to foster innovation, promote entrepreneurship, and enable investment-driven growth. 16 जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था. इसका मेन एम इनोवेशन को फोस्टर करना, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना एंड इन्वेस्टमेंट ड्राइवन ग्रोथ को इनेबल करना रहा है. अबाउट स्टार्टअप इंडिया मिशन. Startup India is a flagship initiative of the Government of India designed to catalyze a culture of innovation and entrepreneurship, transforming India into a nation of a job creator rather than a job seeker. स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव रहा है, जो कि इंडिया में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को कैटलाइज करना चाहता है. इंडिया को जॉब क्रिएटर के तौर पर ये ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, ना कि जॉब सीकर के तौर पे. Launched on January 16, 2016, as of early 2026, India has emerged as the world's third largest startup ecosystem with over 2 lakh recognized startups and 120 plus unicorn. Uh, 2026 तक इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है. ओवर 2 लाख रिकॉग्नाइज स्टार्टअप इसके अंदर हैं एंड 120 प्लस यूनिकॉर्न इसके अंडर वर्क कर रहे हैं. 10 years ago, there were fewer than 500 startups in the country. Today, that number has grown over 2 lakh. 2014 से पहले इंडिया में ओनली 500 स्टार्टअप वर्किंग कर रहे थे, बट प्रेजेंट में ये 2 लाख को सरपास कर चुका है. In 2020, in 2014, India had only 4 unicorn. Today, there are nearly 125 active unicorn in India. 2014 के बिफोर इंडिया में ओनली 4 यूनिकॉर्न थे, जो कि प्रेजेंट में अब 125 हो चुके हैं. ओवर ₹25,000 हैज बीन इन्वेस्टेड थ्रू द फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टेट स्टार्टअप्स. फंड ऑफ फंड्स के थ्रू स्टार्टअप के अंदर अब तक 25,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए जा चुके हैं. कोर डेफिनेशन ऑफ अ स्टार्टअप. स्टार्टअप का कोर डेफिनेशन क्या है? An entity is recognized as a startup by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade if it meets these criteria. अगर कोई भी स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस अगर इन क्राइटेरिया को मीट करता है, देन उसको डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किया जा सकता है एज अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन डेट के यहाँ पर 10 ईयर कंप्लीट होना चाहिए. एंटिटी टाइप. इट मस्ट बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. टर्नओवर. एनुअल टर्नओवर मस्ट नॉट एक्सीड रुपीज 100 करोड़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर सिंस इनकॉर्पोरेशन. किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इसका टर्नओवर 100 करोड़ से एक्सेस नहीं होना चाहिए. गोल. must work toward innovation, development or improvement of product services, or have a scalable business model with high potential for employment, wealth creation.
The three pillars of the action plan. एक्शन प्लान के थ्री पिलर्स क्या हैं? नंबर वन, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। नंबर टू, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव। नंबर थ्री, इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। नंबर सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। सेल्फ सर्टिफिकेशन, startup can self certify compliance for 9 labor and 3 environmental laws to reduce the regulatory burden for 3 years. Startup India Hub, a single window platform for networking, query resolution and mentoring. Fast track potential examination, include an 80% rebate on a patent filing fee to protect intellectual property. Number of funding support and incentivize. Fund of funds. A rupee 10,000 crore corpus managed by SIDBI that invest in venture capital funds rather than directly in startups. Tax exemptions. Eligible startup receive a tax holiday for 3 consecutive years out of their first 10 years of operation. Seed fund scheme provide financial assistance for proof of concept, for prototype development and market entry. Number three, industry academy partnership and incubation. Adult innovation mission aim promote innovation through adult tinkering lab in schools and adult incubation centers in startups. Research park, 7 new park model after IIT Madras Research Park for foster collaboration between industry and academia. इंडस्ट्री एंड एकेडमिया के बीच कोलैबोरेशन को फोस्टर करने के लिए आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क के बाद 7 न्यू पार्क मॉडल किए गए हैं। करंट स्टेटस डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट। स्टार्टअप एंड मिशन के करंट स्टेटस क्या है, डेवलपमेंट क्या है, अचीवमेंट क्या है। नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जनवरी 16। इट मीन्स कल नेशनल स्टार्टअप डे था। रीजनल ग्रोथ, ओवर 50% ऑफ स्टार्टअप नाउ इमर्ज फ्रॉम टायर 2 एंड टायर 3 cities, decentralizing innovation away from major metro hubs. Bhaskar, the Bharat Startup Knowledge Access Registry was launched in late 2024 to serve as a one-stop digital platform for connecting all ecosystem stakeholders. Gender inclusivity, over 45% of recognized startups have at least one woman director. Phase second focus. The current focus has shifted toward deep tech and aligning the ecosystem with the Viksit Bharat 2047 vision. India is the world's third largest startup ecosystem. Over 2 lakh DPIIT recognized startup, 120 plus unicorn, created over 2.1 million jobs. Startup India मिशन ने अब तक 2.1 मिलियन जॉब क्रिएट की हैं। की एसोसिएटेड इनिशिएटिव रिलेटेड टू स्टार्टअप। स्टार्टअप के साथ की एसोसिएटेड इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? मार्क पोर्टल, इट इज अ मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म फॉर एआई बेस्ड मैच मेकिंग बिटवीन मेंटर एंड स्टार्टअप। स्टार्टअप 20, an engagement group institutionalized during India's G20 presidency to globalize the startup movement. States startup ranking, it is an annual exercise to encourage states to build conducive local ecosystem through competitive federalism. Other major scheme and initiative. Number one, fund of funds for startup. Channel fund to AIFs, alternative investment fund for startup investment managed by SIDBI. Number two, Startup India Seed Fund Scheme. Offer financial aid for proof of concept, prototype development and market entry. Number the credit guarantee scheme for startup. Facilitate collateral free loan. स्टार्टअप के लिए कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड कराया जाता है। नंबर वन, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड इनोवेटिव स्टार्टअप। नंबर फाइव, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग एनकरेज स्टेट एंड यूज टू बिल्ड कंड्यूसिव इकोसिस्टम। In this session, we will discuss about Jallikattu, a culture or animal cruelty. We will also discuss prevention of cruelty to animal at 1960 and a Pongal festival. Lecture is important for art and culture. GS paper 1, GS paper 2. Why in news? The traditional Pasuvula Pandua, which has recently come to be known as Andhra Jallikattu, was organized. Recently, आंध्र प्रदेश में ट्रेडिशनल पासुला पांडुआ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। आंध्र प्रदेश में इसको आंध्रा जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है। दिस कैटल फेस्टिवल डिफर फ्रॉम तमिलनाडु जल्लीकट्टू। पासुवला पांडुआ
आंध्र प्रदेश का एक कैटल फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु के जल्लीकट्टू फेस्टिवल से डिफरेंट है। Today, on January 17, 2026, the Chief Minister of Tamil Nadu will also inaugurate the world-famous Jallikattu in Madurai. आज जनवरी 17 को तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर भी वर्ल्ड फेमस जल्लीकट्टू का मदुरई में इनॉग्रेशन करेंगे। What is Jallikattu? Jallikattu is a traditional bull taming sport celebrated in Tamil Nadu. जल्लीकट्टू ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट है जो कि तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल स्पेशली ऑन मट्टू पोंगल द थर्ड डे ऑफ दिस फेस्टिवल। जल्लीकट्टू पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल का एक वाइटल पार्ट है जो कि इस फेस्टिवल का थर्ड डे इट मीन्स मट्टू पोंगल पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू का हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? Ancient roots. This sport is over 2000 years old. Evidence of bull taming has been found in a seal from the Indus Valley civilization and a 1500 years old cave painting near Madurai. जल्लीकट्टू फेस्टिवल अबाउट 2000 ईयर्स ओल्ड स्पोर्ट्स है जिसके एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ सील से भी मिलते हैं और 15 ईयर ओल्ड मदुरई की कुछ केव पेंटिंग में भी इससे रिलेटेड एविडेंस है। लिटरेचर। इट इज ऑल्सो मेंशन इन द संगम एरा तमिल एपिक शिलापाटिकरम एज ईरू थांजुवुथाल। कुछ लिटरेचर में भी इसके एविडेंस मिलते हैं। एटिमोलॉजी। द नेम इज derived from जल्ली। जल्ली means silver or gold coins and कट्टू। कट्टू means tied, referring to the prize money tied to the bull's horn। जल्लीकट्टू वर्ड का जो मीनिंग है यहाँ पर जल्ली मीनिंग होता है सिल्वर और गोल्ड कॉइन एंड कट्टू मीनिंग होता है टाइड। इट मीन्स प्राइज मनी टाइड टू द बुल्स ऑन। बुल्स ऑन के साथ जो भी प्राइज मनी टाइड की गई है उसको यहाँ पर विन करना होता है। नेटिव ब्रीड्स। जल्लीकट्टू sport help in preservation of pure bred native bulls, primarily the Puliculum and कांग्याम ब्रीड। जल्लीकट्टू स्पोर्ट्स एक ऐसा फेस्टिवल है जिसके थ्रू प्योर ब्रीड नेटिव बुल्स के प्रिजर्वेशन को लिंक किया गया है स्पेशली पुलिकुलम एंड कांगायाम ब्रीड तमिलनाडु के प्योर ब्रीड नेटिव बुल्स ब्रीड हैं। इन ब्रीड को प्रिवेंट करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए जल्लीकट्टू स्पोर्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। वेरिएंट्स ऑफ जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू के अलग अलग वेरिएंट्स हैं सच एज वादी मंजूविराट्टू, वैली विराट्टू एंड वाथम मंजूविराट्टू। वादी मंजूविराट्टू बुल इज रिलीज थ्रू अ नैरो गेट इनटू एन एरिना। वादी मंजूविराट्टू फेस्टिवल के अंदर बुल को एक नैरो गेट से रिलीज किया जाता है पूरे एरिया के अंदर वो मूव करता है। वैली विराटो बुल इज रिलीज इनटू एन ओपन ग्राउंड विदाउट स्पेसिफिक गेट। वैली विराटो के अंदर स्पेसिफिक गेट के थ्रू इसे ओपन नहीं किया जाता है बल्कि एक ओपन ग्राउंड में ऐसे ही इसको रिलीज कर दिया जाता है। वातम मंजी विराटो बुल इज टाइड टू अ 15 मीटर रोप एंड पार्टिसिपेंट ट्राई टू टेम इट विद इन अ स्पेसिफिक रेडियस। वाडा मंजू विराटो के अंदर बुल को 15 मीटर लॉन्ग रोप के थ्रू टाइट कर दिया जाता है एंड पार्टिसिपेंट इस बुल को विद इन स्पेसिफिक रेडियस टाइम करने की कोशिश करते हैं। लीगल एवोल्यूशन ऑफ जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू का लीगल एवोल्यूशन क्या है? The sport has been a subject of intense legal debate regarding animal rights versus cultural preservation। जल्लीकट्टू स्पोर्ट एक इंटेंस लीगल डिबेट का सब्जेक्ट रहा है स्पेशली एनिमल राइट्स वर्सेस कल्चरल प्रिजर्वेशन से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर जनरेट हुए हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नागराजन 2024। सुप्रीम कोर्ट originally banned jallikattu citing animal cruelty under the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960। 2014 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नागराजन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू स्पोर्ट को बैन कर दिया था स्पेशली प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एट 1960 के अंडर। सुप्रीम कोर्ट ने इस फेस्टिवल को एनिमल क्रुएल्टी के तौर पर सेट किया। स्टेट अमेंडमेंट 2017
Following a mass protest, the Tamil Nadu government amended the PCA Act to allow the sport while introducing safety regulations. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन करने के बाद तमिलनाडु के अंदर बहुत ज़्यादा मास प्रोटेस्ट होता है। मास प्रोटेस्ट के बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट पीसीए एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट करती है और इन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बुल टेमिंग से रिलेटेड कुछ सेफ्टी रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और ये अमेंडमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस सेंट्रल पीसीए एक्ट के अंदर अमेंडमेंट इसलिए किए जाते हैं बिकॉज एनिमल प्रोडक्शन एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट में कुछ अमेंडमेंट कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। सुप्रीम कोर्ट वर्डेड में 2023 a 5 judge constitution bench upheld the 2017 तमिलनाडु अमेंडमेंट। 2017 में तमिलनाडु ने जो पीसीए एक्ट 1960 के अंदर जो अमेंडमेंट किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें अपहोल्ड किया है। The court ruled that Jallikattu is an integral part of the cultural heritage of the state and that the amendment substantially reduced pain and cruelty. सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 में जल्लीकट्टू से रिलेटेड अपने जजमेंट में जल्लीकट्टू स्पोर्ट को तमिलनाडु का एक कल्चरल हेरिटेज के एक इंटीग्रल पार्ट के तौर पर अपना रूलिंग गिवन किया और स्टेट किया कि अब तमिलनाडु ने पेन एंड क्रुअल्टी से रिलेटेड जो भी एक्ट थे उनको रिड्यूस किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज क्या-क्या रेज होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या-क्या प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 29(1) प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल राइट। आर्टिकल 29(1) के अंदर किसी भी कम्युनिटी को अपने कल्चरल राइट को प्रोटेक्शन करने का राइट गिवन किया गया है। आर्टिकल 48 डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48 के अंदर डीपीएसपी प्रोविजन किए गए हैं। स्पेशली स्टेट के लिए डायरेक्ट किया गया है कि वो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ इनिशिएटिव टेकिंग करें। आर्टिकल 51 ए जी फंडामेंटल ड्यूटी टू शो कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। लिविंग क्रीचर्स के प्रति सभी सिटीजन को कंपैशन शो करना होगा, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 51 ए जी जल्लीकट्टू फेस्टिवल आर्टिकल 51 ए जी का एक वायलेशन था। सेवंथ शेड्यूल प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल इज द कॉन्करेंट लिस्ट अलाउइंग बोथ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेट। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल ये एक कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। स्पेशली एंट्री नंबर 17 में इसको मेंशन किया गया है और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को इसको लेजिस्लेट करने की पावर गिवन की गई है। यही वजह है कि तमिलनाडु ने पीसीए एक्ट 1960 के अंदर अपने अकॉर्डिंग कुछ अमेंडमेंट किए। ये जो अमेंडमेंट किए गए हैं 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंग किए गए हैं। सिमिलर स्पोर्ट्स Kambala buffalo race in Karnataka and Bullock cart race in Maharashtra were also upheld by the Supreme Court in 2023. जल्लीकट्टू स्पोर्ट फेस्टिवल के सिमिलर कुछ और भी फेस्टिवल कर्नाटक एंड महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किए जाते हैं। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी फेस्टिवल को अपहेल्ड किया। कर्नाटक में कंबाला बफेलो रेस एंड महाराष्ट्र में बुलक कार्ट रेस सेलिब्रेट किए जाते हैं। की इश्यूज एंड कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू से रिलेटेड की इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज क्या-क्या है। एनिमल क्रुएल्टी। एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक PETA, PETA means People for the Ethical Treatment of Animal and Animal Welfare Board of India argue that Jallikattu cause unnecessary pain, suffering and fear to bulls. कुछ एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन सच एज PETA एंड AWBI इन्होंने आर्ग्यू किया है कि जल्लीकट्टू फेस्टिवल बुल्स को अननेसेसरी पेन, सफरिंग एंड फियर गिवन करता है। क्रूअल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग बाइटिंग, ट्विस्टिंग ऑफ टेल्स, poking with sharp object and applying chili powder to their eyes to provoke them। इनका कहना है कि
एनिमल के साथ स्पेशली बुल के साथ यहाँ पर क्रूअल ट्रीटमेंट किया जाता है। बाइटिंग, ट्विस्टिंग ऑफ टेल, पोकिंग विद शार्प ऑब्जेक्ट, चिली पाउडर यूज इन आई, ये कुछ एक्ट हैं जो कि बुल को प्रोवोक करने के लिए यूज किए जाते हैं इस फेस्टिवल में। सेफ्टी हजार्ड, जल्लीकट्टू इवेंट पोज सिग्निफिकेंट रिस्क टू ह्यूमन लाइफ के लिए भी ये सिग्निफिकेंट रिस्क पोज करता है। मल्टीपल fatalities and injuries are reported among participants and spectators annually. Next, ethical concern. Activists argue that the exploitation of animals for entertainment is immoral and violates the fundamental duties to compensation to living creatures. Article 51A(j). एक्टिविस्ट का ये आर्गुमेंट रहा है कि एंटरटेनमेंट के लिए एनिमल का एक्सप्लॉइटेशन इमोरल एंड फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन है, स्पेशली आर्टिकल 51 ए जी के अंदर लिविंग क्रीचर्स के प्रति सिटीजन्स को कंपेशन शो करना होगा। बट इस फेस्टिवल में ऐसा नहीं हो रहा है। लीगल कॉन्फ्लिक्ट, इट मीन्स फेडरलिज्म से रिलेटेड भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर रेज होते हैं। The Supreme Court banned the sport in 2014, citing violations of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. In 2017, the Tamil Nadu government passed an amendment to the Central Act to allow the sports. This created a clash between state legislation and central legislation, which was referred to a constitutional bench. 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू स्पोर्ट को प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के अकॉर्डिंग इसको बैन किया था। बट तमिलनाडु में वाइड स्प्रेड मूवमेंट हुए और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल एक्ट 1960 जो कि एक सेंट्रल लॉ है, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए और अगेन इस फेस्टिवल को स्टार्ट किया। इस तरह से ये जो इशू है ये स्टेट लेजिस्लेशन एंड सेंट्रल लेजिस्लेशन के बिटवीन एक क्लैश क्रिएट करता है। चैलेंजेस फॉर रेगुलेशन, जल्लीकट्टू फेस्टिवल के रेगुलेशन से रिलेटेड क्या-क्या चैलेंजेस हैं? Balancing culture versus rights. The main challenge is finding a middle solution that respects the cultural sentiment of a 2000-year-old tradition while adhering to modern animal welfare standard and constitutional morality. इस इशू से रिलेटेड जो बिग चैलेंज है वो ये है कि 2000 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन के अंडर कल्चरल सेंटिमेंट के रिस्पेक्ट में किस तरह से इस फेस्टिवल को कंटिन्यू रखा जाए एंड एक तरफ एनिमल वेलफेयर को भी हमें मेंटेन करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो एनिमल के लिए गिवन की गई हैं उन सभी को बैलेंस करते हुए हमें एक मिडिल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये एक बिग चैलेंज है। एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स, डिस्पाइट द 2017 तमिलनाडु अमेंडमेंट इंट्रोड्यूसिंग सेफ्टी रूल, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट है। 2017 में तमिलनाडु ने कुछ सेफ्टी रूल्स यहाँ पर अमेंडमेंट के अंडर प्रोविजन किए गए थे बट उनका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी डिफिकल्ट है। इंजरीज स्टिल अकर ड्यू टू पुअर एनफोर्समेंट एज रिपोर्टेड इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स में भी एनिमल और बुल दोनों को इंजरी से रिलेटेड इंसिडेंट शो होते हैं। Commercialization, the shift from a traditional localized event to a large-scale commercialized sport has intensified the violence and cruelty of bulls, making it harder to manage than in the past. Uh, ये जो फेस्टिवल है ये ट्रेडिशनल लोकलाइज्ड इवेंट से अब लार्ज स्केल कॉमर्शलाइज्ड स्पोर्ट बन चुका है और यही वजह है कि वायलेंस एंड एनिमल क्रुएल्टी अब इंटेंसिफाई हो रहे हैं। Now we will discuss about a Pongal festival. Pongal, a 4-day Tamil harvest festival of thanksgiving to the sun god, mother nature and farm animal for a bountiful harvest. पोंगल 4-day तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि जनवरी 14 टू 17 तक सेलिब्रेट किया जाता है। स्पेशली तमिलनाडु के पीपल बाउंटीफुल हार्वेस्ट के लिए सन गॉड, मदर नेचर एंड फार्म एनिमल को थैंक्स गिविंग करते हैं इस फेस्टिवल के थ्रू। A festival of thanksgiving of to the sun, earth and rain, Pongal symbolizes prosperity with its name meaning to boil over.
सन, अर्थ एंड रेन को यहाँ पर बाउंडफुल हार्वेस्ट में कोऑपरेट करने के लिए इस फेस्टिवल के थ्रू तमिलनाडु के लोग थैंक्स गिविंग करते हैं। पोंगल, जिसका मीनिंग टू बॉयल ओवर होता है, प्रोस्पेरिटी को सिंबलाइज करता है। पोंगल फेस्टिवल celebrated with vibrant kolam, traditional dishes like sweet pongal, and rituals honoring in the sun, cattle, and family. पोंगल फेस्टिवल के अंदर वेरियस सेलिब्रेशंस यहाँ पर किए जाते हैं। वाइब्रेंट कोलम विच इज नोन एज रंगोली, ट्रेडिशनल डिशेज लाइक स्वीट पोंगल एंड कुछ रिचुअल्स यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। स्पेशली इंद्र एंड सन को ऑनर गिवन करने के लिए सूर्य पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। कैटल को ऑनर गिवन करने के लिए मट्टू पोंगल एंड फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के लिए कन्नूम पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। It marks the start of the Tamil month of Thai, signifying new beginnings and a prosperous year. पोंगल फेस्टिवल तमिल मंथ का स्टार्ट माना जाता है और ईयर का यहाँ पर प्रोस्पेरस तरीके से बिगिनिंग किया जाता है। 4 डेज अंदर पोंगल फेस्टिवल। पोंगल फेस्टिवल 4 डे का फेस्टिवल होता है। अलग अलग डे पर अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, सच एज भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल, कन्नुम पोंगल। फर्स्ट डे भोगी पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। बोन फायर टू बोन ओल्ड थिंग्स ऑनरिंग लॉर्ड इंद्र। भोगी पोंगल के अंदर ओल्ड थिंग्स को बर्न किया जाता है। लॉर्ड इंद्र को इसके थ्रू ऑनर गिवन किया जाता है। सेकेंड डे फेस्टिवल सूर्य पोंगल, मेन डे फॉर बोइलिंग राइस, मिल्क, जगरी ऑफरिंग टू द सन गॉड। सूर्य पोंगल के अंदर राइस, मिल्क, जगरी को बॉईल किया जाता है। स्पेशली सन गॉड, इसमें इनमें सूर्य को यहाँ पर ऑनर गिवन किया जाता है। थर्ड डे मट्टू पोंगल, वर्शिप ऑफ कैटल, काव, बुल्स विद डेकोरेशंस एंड गार्लैंड्स। कैटल को मट्टू पोंगल के अंदर वर्शिप किया जाता है, स्पेशली इन्हें डेकोरेट किया जाता है। कन्नूम पोंगल फोर्थ डे, फैमिली गैदरिंग, पिकनिक्स, विजिटिंग रिलेटिव्स एंड मेकिंग ऑफरिंग टू बर्ड्स। फोर्थ डे कनुम पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पर फैमिली गैदरिंग होता है, पिकनिक्स, लोग रिलेटिव के यहाँ विजिट करते हैं एंड उन्हें बर्ड्स के लिए भी यहाँ पर कुछ ऑफरिंग्स मेकिंग किए जाते हैं। In this session, we will discuss Article 6 of Paris Agreement. Why Article 6 is a powerful tool for India? Article 6 of the Paris Agreement is a powerful tool for India because it facilitated access to climate finance, technology transfer, and a new carbon market, crucial for meeting climate goal. आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट इंडिया के लिए एक पावरफुल टूल है, बिकॉज इंडिया के लिए ये एक क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कार्बन मार्केट एक्सेस को फैसिलिटेट करता है, जो कि क्लाइमेट गोल को मीटिंग करने के लिए क्रूशियल है। The Paris Agreement, adopted in 2015 at the UNFCCC COP21 conference, is a landmark global treaty to combat climate change by limiting global warming to well below 2 degrees Celsius, preferably to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial level. पेरिस एग्रीमेंट जो कि 2015 में UNFCCC COP21 कॉन्फ्रेंस के अंडर एडॉप्ट किया गया था, एक लैंडमार्क लीगल ट्रीटी रहा है क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, जिसके अंडर ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक बिलो रखने का टारगेट रखा गया। All nations submitting nationally determined contribution to cut emissions, establishing a common framework for collective climate action and finance. पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ही ऑल कंट्रीज को यहाँ पर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट गिवन किए गए सो दैट एमिशन को रिड्यूस किया जा सके। इट मीन्स पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ है, इसने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पर कॉमन फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया है। सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट फॉर इंडिया। पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर ऑफ मोबिलाइजिंग क्लाइमेट फाइनेंस। आर्टिकल 6 मैकेनिज्म enable India to attract foreign investment for low carbon projects like renewable energy, afforestation and energy efficiency. आर्टिकल 6 मैकेनिज्म जो है इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए
स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी, अफॉरेस्टेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया अट्रैक्ट कर सकता है आर्टिकल 6 मैकेनिज्म की वजह से। दिस हेल्प इंडिया टू ब्रिज द सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल गैप फॉर क्लाइमेट एक्शन। नंबर 2, कॉस्ट इफेक्टिव एंड इम्प्लीमेंटेशन। कॉस्ट इफेक्टिव एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए आर्टिकल 6 इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इंडिया ने एमिशन रिडक्शन के लिए कुछ नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट यहाँ पर सेट किए हुए हैं। उन टारगेट को अचीव करने के लिए आर्टिकल 6 इम्पोर्टेंट है। बाय जनरेटिंग एंड सेलिंग कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट, इंडिया कैन यूज द रेवेन्यू टू मेक इट क्लाइमेट एक्शन मोर अफोर्डेबल। एमिशन रिडक्शन के लिए इंडिया ने कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड इनिशिएटिव टेकिंग किए गए हैं। इन कार्बन क्रेडिट को इंडिया अब जनरेट कर सकता है, सेल कर सकता है। इसके थ्रू जो भी रेवेन्यू मिलेगा इंडिया को, क्लाइमेट एक्शन टेकिंग कर सकता है उस रेवेन्यू का यूज करके। नंबर 3, promoting sustainable development. Article 6 also contribute to sustainable development goal. Climate action in India is linked to job creation in the green sector, improved air quality, and the development of sustainable infrastructure. आर्टिकल 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इंडिया में क्लाइमेट एक्शन जो भी टेकिंग किए जा रहे हैं वो जॉब क्रिएशन इन द ग्रीन फील्ड से लिंक है, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ ही सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 4, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। Article 6 encourages the transfer of advanced clean technologies to India, which is vital for transitioning its high emission sector like steel and cement. आर्टिकल 6 एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को अनकरेज करता है, स्पेशली क्लीन टेक्नोलॉजीज के ट्रांसफर के लिए एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, जो कि इंडिया के हाई एमिशन सेक्टर सच एज स्टील एंड सीमेंट के ट्रांजिशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 5, इंटीग्रेटिंग विद ग्लोबल मार्केट। India has established a national designated authority and is developing its domestic carbon market carbon credit trading scheme. इंडिया इंडिया ने रिसेंटली नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इस्टेब्लिश की है एंड डोमेस्टिक कार्बन मार्केट भी इंडिया ने डेवलप किए हैं, aligning with the standards and international norms set by the Article 6 will allow seamless integration with the global carbon market. इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड के साथ आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग अगर इंडिया अपने आप को अलाइन करता है, देन इंडिया अपने कार्बन मार्केट को ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेट कर सकता है। नंबर 2, शोकासिंग लीडरशिप। India can leverage its successful implementation of clean energy and nature-based solutions on platforms like G20 and BRICS. इंडिया अपने सक्सेसफुल क्लीन एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन को एंड एनिमल नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को कुछ इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म सच एज G20 एंड ब्रिक्स के बिफोर प्लेस कर सकता है। की आस्पेक्ट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट goal: limit global temperature rise to below 2 degrees Celsius and pursue efforts to limit it to 1.5 degrees Celsius. Participant adopted by 196 parties at the UN Climate Change Conference, that means COP21 in Paris. COP21 के ड्यूरिंग इसको अडॉप्ट किया गया था, स्पेशली 196 पार्टिसिपेंट कंट्री रहे थे। मैकेनिज्म NDCs, National Determined Contribution. Each country set its own emission reduction target, which are revised and strengthened over time. हर कंट्री को यहाँ पर कुछ एमिशन रिडक्शन टारगेट सेट करने होते हैं, विच इज नोन एज NDC. Global Stocktake, a periodic assessment every 5 years of collective progress towards the agreement goal. पेरिस एग्रीमेंट में जो भी गोल सेट किए गए थे, उन गोल से रिलेटेड एक पीरियोडिक असेसमेंट एवरी 5 ईयर में किया जाता है। इट मीन्स कलेक्टिवली प्रोग्रेस जो भी रहा है एवरी 5 ईयर में ये असेसमेंट किया जाता है, विच इज नोन एज ए ग्लोबल स्टॉक टेक।
transparency, an enhanced framework for monitoring, reporting, and verifying progress. Finance, developed nations help developing nations with climate mitigation and adaptation. Legally binding, it is a legally binding treaty, a significant shift from previous agreement. पेरिस एग्रीमेंट एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी रहा है जो कि प्रीवियस एग्रीमेंट से एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है entered into force on November 4, 2016 after ratification by at least 55 countries representing 55% of global emission. नवंबर 4 2016 में इसको फोर्स किया गया था स्पेशली इसको स्टार्ट किया गया था 55 कंट्रीज ने इसको स्टार्टिंग में रेटिफाई किया था जो कि ग्लोबल एमिशन के लिए 55% तक रिस्पॉन्सिबल है सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिस एग्रीमेंट का क्या सिग्निफिकेंस रहा है पेरिस एग्रीमेंट brought nearly all nations together under one common plan shifting from top down obligation to bottom up nationally determined contribution fostering universal participation of in tackling climate change. What is the status of solar energy sector in India and in world? India's clean energy transition is gaining momentum. In 2024, India added 24.5 gigawatt of solar energy capacity, making India the third largest contributor globally after China and US. इंडिया में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन मोमेंटम गेन कर रहा है 2024 में इंडिया ने 24.5 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी ऐड किया प्रेजेंट में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन चुका है ग्लोबली आफ्टर चाइना एंड यूएस इंडिया ब्राजील एंड चाइना आर लीडिंग डेवलपिंग कंट्री स्केलिंग सोलर एंड विंड एनर्जी इंडिया लीडरशिप इन एस्टेब्लिशिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज लॉडेबल इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इस्टेब्लिश करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है और अपना लीडरशिप शो किया है ग्लोबली व्हाट इज सोलर एनर्जी solar energy is a type of energy captured through light and heat from the sun and turned into useful power like electricity for our homes or heat for water using technology like solar panel सोलर एनर्जी एक टाइप की एनर्जी है जिसको सोलर पैनल का यूज करके सन की लाइट एंड हीट से प्रोड्यूस किया जाता है और असेंशियल पावर लाइक इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर होम्स एंड फॉर हीटिंग वाटर यूज किया जाता है it is a clean renewable energy source because it comes from the sun and endless resource and produce no pollution when used सोलर एनर्जी एक क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है बिकॉज ये हमें सन से मिलती है और सन एक एंडलेस रिसोर्स है जब सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है कोई पॉल्यूशन यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होता है हाउ सोलर पैनल वर्क सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सोलर पैनल्स का यूज किया जाता है बट सोलर पैनल कैसे वर्क करते हैं photovoltaic cells found in solar panel these semiconductor material convert sunlight directly into direct current electricity through the photovoltaic effect सोलर पैनल में फोटोवोल्टिक सेल होते हैं जो कि ये एक तरीके के सेमीकंडक्टर मेटेरियल होते हैं जो सनलाइट को डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है सनलाइट एब्जॉर्प्शन photons from the sun strike the solar panel's PV cell made from silicon layer सन के फोटोन्स सबसे पहले सोलर पैनल के पीवी सेल से स्ट्राइक करते हैं सोलर पीवी सेल्स सिलिकॉन लेयर के द्वारा बने होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सीडेशन द एनर्जी फ्रॉम द फोटोन्स नॉक इलेक्ट्रॉन लूज फ्रॉम दियर एटम विद इन द सिलिकॉन फोटोन के थ्रू जो भी एनर्जी कैच की जाती है वो सिलिकॉन के अंदर जो एटम होते हैं उसको नॉक करते हैं और उन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको लूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएशन द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस सेल गाइड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन causing them to flow in a specific direction DC current generation this flow of electron create direct current electricity collected by metal contact
इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ये डायरेक्ट करंट इट मीन्स डीसी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर क्रिएट करता है जो कि मेटल कॉन्टैक्ट के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। इन्वर्टर कन्वर्जन्स डीसी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल टू एन इन्वर्टर व्हिच चेंजेस इट इनटू alternating current electricity, the type used by homes and grid. Power usage and storage. The AC power can immediately run appliances or it can be stored in batteries for later, with excess power often fed back to the utility grid. की बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी के की बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। नंबर रिन्यूएबल एंड क्लीन रिड्यूस कॉस्ट एनर्जी इंडिपेंडेंस नंबर रिन्यूएबल एंड क्लीन the sun is an inexhaustible resource and solar power produces no greenhouse gas or a pollutant during operation reduce cost can lower or eliminate electricity bill over time सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस किया जा सकता है। एनर्जी इंडिपेंडेंस अलाउ इंडिविजुअल्स बिजनेस एंड कम्युनिटीज टू जनरेट देयर ओन पावर। सोलर एनर्जी स्टेटस इन इंडिया सोलर एनर्जी के रिस्पेक्ट में इंडिया का क्या स्टेटस है। ग्लोबल रैंकिंग थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर एंड थर्ड इन इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी ग्लोबली आफ्टर चाइना एंड यूएस। सोलर पावर प्रोडक्शन एंड इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में इंडिया चाइना एंड यूएस के बाद थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। रैपिड ग्रोथ अचीव्ड ओवर 100 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी विद सिग्निफिकेंट एनुअल एडिशन। इंडिया ने 100 गीगावाट से अबव सोलर कैपेसिटी अचीव किया है। पॉलिसी ड्राइवन इनिशिएटिव लाइक पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना फॉर रूफटॉप सोलर एंड स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट आर एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इंडिया में कुछ पॉलिसी ड्राइवन टेकिंग की गई है, कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं सच एज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना फॉर रूफटॉप सोलर एंड स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट। Energy mix renewable including solar now form over 50% of India's total installed capacity, making COP26 goal ahead of schedule. इंडिया ने टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 50% रिन्यूएबल सोर्स के थ्रू यहाँ पर इंस्टॉल किया है। रिन्यूएबल के अंडर स्पेशली सोलर का सबसे बड़ा रोल है। इट मीन्स ओवरऑल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 50% अब रिन्यूएबल सोर्स के थ्रू इस्टेब्लिश हो चुका है। कॉप 26 के अंडर ये एक गोल सेट किया गया था इंडिया के द्वारा 2030 तक, बट 2030 से पहले ही इंडिया ने अब रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इस्टेब्लिश किया है। मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया इज स्केलिंग अप डोमेस्टिक सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग टू बिकम अ ग्लोबल हब। सोलर एनर्जी स्टेटस इन वर्ल्ड ग्लोबल शेयर सोलर एंड विंड पावर कलेक्टिवली जनरेट 15% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी इन 2024। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सोलर एंड विंड पावर का 15% तक रोल है। लीडिंग नेशंस चाइना यूएस एंड इंडिया लीड इन टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ग्रोथ ड्राइवर continue global investment in renewables with India playing a key role through an international solar alliance. Cost India had one of the lowest total installed cost for solar in 2022, indicating efficiency and cost effectiveness. What are the new advancements in solar power? सोलर पावर के सेक्टर में न्यू एडवांसमेंट क्या क्या हुए हैं। नंबर इम्प्रूव्ड सोलर पैनल एफिशिएंसी सोलर पैनल का एफिशिएंसी इम्प्रूव हुआ है। नंबर एडवांसमेंट इन थिन फिल्म सोलर सेल टेक्नोलॉजी थिन फिल्म सोलर सेल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुए हैं। नंबर 3 स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन ऑफ फोटोवोल्टेक का स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन हुआ है। नंबर 4 कैप्चरिंग सोलर एनर्जी एट नाइट नाइट में भी सोलर एनर्जी को कैप्चर करने की टेक्नोलॉजी अब न्यू टेक्नोलॉजी है। नंबर इम्प्रूव्ड सोलर पैनल एफिशिएंसी रिसेंटली सोलर पैनल एफिशिएंसी हैव improved worldwide. The low panel efficiency is a big hurdle. Factors like temperature, solar irradiance level, cell type, and cell interconnection affect the efficiency level. Number of advancement in thin film solar cell technology. Traditionally, thin film solar panel have been less efficient than standard panel.
but the new development in solar panel technology are changing that. Number three, structural integration of photovoltaic. Integrating photovoltaics within the structure of a building is a popular concept involving solar electric architecture. This technology is growing at a fast rate in Europe, US, and Japan. Number one, capturing solar energy at night. The latest solar technology has led to the development of anti-solar panel which can generate power during the night. एंटी सोलर पैनल भी अब डेवलप किए जा रहे हैं जो कि नाइट के ड्यूरिंग भी पावर जनरेट कर सकते हैं। दीज स्पेशली डिजाइंड पैनल कैप्चर द हीट दैट इज रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ड्यूरिंग द नाइट। नाइट में इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू अर्थ के द्वारा जो भी रेडिएशन के थ्रू जो हीट जनरेट की जाती है उस हीट को अब कैप्चर कर सकते हैं। न्यू सोलर टेक्नोलॉजी क्या क्या रहे हैं? नंबर वन, सोलर ओशन फार्म। नंबर वन, फोटोवोल्टिक सोलर नॉइज बैरियर। नंबर थ्री, एग्रीवोल्टिक्स solar ocean farm. Recently, Singapore has constructed a floating solar farm with a peak capacity of 5 megawatt. Ocean-based solar energy can be a great booster for the solar power industry. Marine installations are a perfect solution for cities facing land scarcity. Number two, photovoltaic solar noise barrier. फोटोवोल्टिक सोलर नॉइज बैरियर भी कुछ कंट्रीज में आ चुके हैं। अबाउट 3000 miles of traffic noise barrier has been built across 48 states in the US to reduce traffic noise. ट्रैफिक नॉइज को रिड्यूस करने के लिए यूएस के अबाउट 48 स्टेट के अंदर ट्रैफिक नॉइज बैरियर यहाँ पर अब बिल्ट किए गए हैं। These barriers have been integrated with PV modules that generate electricity from solar energy. ये जो बैरियर हैं ये सोलर पीवी मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट किए गए हैं जो कि सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। These noise barrier can generate about 400 gigawatt in a year. Number three, agrivoltaics. Agrivoltaic technology involves installing solar panel over agricultural land that can make the farm self-sustaining. एग्रीवोल्टिक्स के अंदर ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एग्रीकल्चर लैंड पर सोलर पैनल को इंस्टॉल करती है और फार्म को सेल्फ सस्टेनिंग बना सकती है। सोलर पावर्ड इरिगेशन सिस्टम आर ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर। Shade from the panel can also help in growth of the crops and reduce water consumption by minimizing evaporation. Currently, some of these projects are underway in Europe, Japan, and South Korea. Global market of solar energy. Solar energy का global market क्या है? As of 2023, China dominates solar PV as 43% of the cumulative capacity of solar panels installed globally is from China. ग्लोबली जितना सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं ग्लोबली जितना कैपेसिटी है उसका 43% चाइना डोमिनेट करता है। इट मीन्स सबसे ज़्यादा सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी चाइना के पास है। यूएस 10%, जापान, जर्मनी एंड इंडिया each capture 5 to 6%. Emerging solar market in countries like Brazil, Australia, Italy and Spain contributed about 2%. हम देख सकते हैं कि सोलर पैनल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा चाइना के पास है। सेकंड 10% जापान के यूएस के पास है। इंडिया, जर्मनी एंड जापान ये थर्ड नंबर पे आते हैं। अबाउट 5 to 6% कैपेसिटी है यहाँ पर। कुछ अदर कंट्रीज सच एज ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन ओनली 2% सोलर पैनल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। China has highest share in component manufacturing in 2023 with 97% in warfare, 89% in cells and 83% in module installation capacity. कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली सोलर पैनल से रिलेटेड या सोलर पैनल में जितने भी रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है उन कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग में हाईएस्ट शेयर चाइना की है। वारफेयर में 96% शेयर एंड सोलर सेल को मैन्युफैक्चरिंग करने में 89% चाइना ही डोमिनेट करता है।
मॉड्यूल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 83% चाइना ही डोमिनेट करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ सोलर सेक्टर इन जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सोलर सेक्टर का क्या रोल है? Globally, the solar PV sector employed over 4.5 million people in 2023, making it a significant employer in renewables. While India's solar PV sector employed around 3,18,600 people in 2023. 2023 के एक डाटा के अकॉर्डिंग सोलर पीवी सेक्टर ने, इट मीन्स रिन्यूएबल सेक्टर ने 4.5 मिलियन जॉब क्रिएट किए हैं, 45 लाख जॉब क्रिएट किए हैं, जबकि इंडिया में 3,18,600 पीपल को सोलर पीवी सेक्टर ने जॉब प्रोवाइड की हैं। की रिन्यूएबल सोर्स इन इंडिया। इंडिया में रिन्यूएबल सोर्स क्या क्या है? नंबर 1 सोलर पावर, नंबर 2 विंड पावर, नंबर 3 हाइड्रो पावर, नंबर 4 ग्रीन हाइड्रोजन। नंबर 1 सोलर पावर, it dominant source of clean energy with significant installed capacity. National Institute of Solar Energy for Research and Development also established in India. सोलर पावर इंडिया की क्लीन एनर्जी का एक डोमिनेंट सोर्स है। इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेब्लिश किया गया है। नंबर विंड पावर, इंडिया हैज सब्सटेंशियल विंड एनर्जी पोटेंशियल particularly in states like Rajasthan, Gujarat and Tamil Nadu. India also has a national institute for wind energy supporting its development. Number 3 hydropower. Hydropower is a significant contributor in clean energy with untapped potential in small hydro projects, especially in Himalaya and northeastern region. Number 4 green hydrogen. It is an emerging area with plans to integrate surplus renewable energy for its production. इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का स्टेटस क्या है? इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली एक्सीडिंग 200 गीगावाट ऑफ टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी। इंडिया में टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी 200 गीगावाट को एक्सीड कर चुका है। ये एक ग्रोइंग सेक्टर है। The country's renewable energy mix is dominated by solar and wind power, supported by policy interventions and international collaboration like International Solar Alliance. Future plan include increasing renewable capacity to 500 gigawatt by 2030, expanding decentralized energy system and integrating green hydrogen. इंडिया ने 2030 तक के लिए टारगेट रखा हुआ है कि वो अपना रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक रीच करेगा। प्रेजेंट में 200 गीगावाट है। की अचीवमेंट एंड माइलस्टोन ऑफ इंडिया। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंडिया के क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं? नंबर ऑफ 50% नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी एज ऑफ जुलाई 2025, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ इंडिया टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। जुलाई 2025 तक इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका 50% अब नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस के थ्रू ये कैपेसिटी इस्टेब्लिश की गई है। इट मीन्स नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस बेस पर इंडिया का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अब 50% हो चुका है। नंबर ऑफ ग्लोबल स्टैंडिंग, इंडिया रैंक 4th ग्लोबली इन ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड 3rd इन सोलर एनर्जी कैपेसिटी। ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में ग्लोबली 4th रैंक है इंडिया का। सोलर पावर कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में 3rd रैंक है। नंबर 3 सिग्निफिकेंट ग्रोथ, सोलर कैपेसिटी हैज बीन इंक्रीजिंग रैपिडली, increasing by over 39 times from 2.82 gigawatt in 2014 to 110.9 gigawatt by June 2025। सोलर एनर्जी कैपेसिटी 2014 के कंपेयर में 2025 में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है। 2014 में सोलर एनर्जी कैपेसिटी ओनली 2.82 गीगावाट थी, वहीं 2025 में ये 110.9 गीगावाट तक इंक्रीज हुआ है। बात अगर ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की जाए 200 गीगावाट इंडिया के पास कैपेसिटी है, जिसमें 110.9 गीगावाट ओनली सोलर एनर्जी का रोल है। फ्यूचर आउटलुक ऑफ इंडिया, नंबर 1 500 gigawatt target. India aims to surpass 500 gigawatt of non-fossil fuel energy capacity by 2030। 2030 तक इंडिया
नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी अबाउट 500 गीगावाट तक गेन करेगा। नंबर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स, एक्सपेंशन ऑफ ग्रिड सोलर, माइक्रो ग्रिड्स एंड सोलर irrigation pumps for enhanced rural energy access. Number three, integrated solution. India aims to focus on smart grid, pumped hydro, and battery storage to manage renewable energies variability. Number four, urban integration. Initiatives to promote rooftop solar and wind turbines in urban areas. So, thanks for watching.